In this lecture, in the p block element, we will discuss oxygen family. Which family? Oxygen family. Okay. Initially, some of the properties, atomic and the physical property. In this lecture, we will discuss atomic properties and the physical properties. Okay. So first atomic property started from the atomic and ionic radii. But before atomic and ionic radii, we have to learn the electronic configuration and the element present in this group. So we know that in this group, the element present are oxygen, sulfur, selenium, tellurinium, and the polonium. Okay, oxygen. Again, how can we learn this group? US se T po. US se T po. This is the short form by which we can learn this group. Oxygen, sulfur, selenium, and the polonium. Okay, selenium, tellurinium, and the polonium. They are the elements. Okay, so you have to learn. Clear? Next, electronic configuration. The first is in the electronic configuration, oxygen. Before learning oxygen, you have to know that the general electronic configuration of this group is NH2NP4. Which one is the electronic configuration? NH2NP4 is the electronic configuration of this group. Okay. Why the NH2NP4? Because the valence shell electrons, 2 electron enter into the s orbital and the 4 electron enter into the p orbital. That's why it's called NH2NP4. Okay, we can understand with the help of the configurations. So see, the oxygen atomic number is 8, and the what is the configuration? Helium 2s2 2p4, or we can write is 1s2 2s2 and 2p4. This is the electronic configuration of oxygen. Next is a sulfur, atomic number 16 and mass number 32.606, and the configuration is 3s2 3p4. Next is a selenium 34 atomic number, and the configuration is 3d10 4s2 and pa4p4. Tellurium 52 4d10 5s2 and 5p4. Okay, and the last one is the polonium 84 atomic number, mass number is 210, or a configuration 4f15 5d10 6s2 6p4. Now see, 3s 2s2 3s2 3p4 4s2 4p4 5s2 5p4 and 6s2 6p4. That's why the general electronic configuration is NH2NP4. Clear? Okay. Again, simple method is जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू हैव टू लर्न. सेकेंड वन, एटॉमिक नंबर मैंने आपको पहले भी सिखाया था. ऐड 8, देन गेट द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट ऑक्सीजन टू सल्फर 16, देन ऐड हाउ मेनी 18. तो 34 plus 18, 16 plus 18 34. Okay, then again add 18, we'll get the 52, and add 32, then we'll get the 84. So we can easily learn the atomic number, the electronic configuration, and the their name. उससे T. And next is the most important is you have to see that configuration, because in the previous group, the oxygen nitrogen family and the boron family, we had discussed that the properties depending on this electronic configuration, when the electron fills in the d orbital and the f orbital, this affected the property, and the properties sudden changes from oxygen to sulfur. ठीक है, यहाँ पे जो रीजन होता है स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट, यहाँ रीजन होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट. विल डिस्कस in the next topic. The reasons are same as given in the we have already discussed in the nitrogen family. So okay, so next is a property is atomic and ionic radii. Next property is atomic and ionic radii. In general, we know that atomic and ionic radii increases regularly. Okay, if we discuss covalent radii, to oxygen 66 picometer, sulfur is 104, selenium is 117, tellurinium is 137, PO is 146. Regularly increases. Why increases? Because we have seen the regularly number of shells increases. ठीक है. हाँ, size of the oxygen is 66 picometer only, very small size, exceptionally small size. तो वहाँ पे एक्सेप्शनली स्मॉल साइज क्यों है, तो हमको वहाँ समझ में आता है क्योंकि जब हम ऑक्सीजन से सल्फर की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, कहाँ बढ़ रहे हैं हम लोग,
ऑक्सीजन से सल्फर क्यों बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सडनली साइज बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एस एन पी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एस एन पी ऑर्बिटल। एज अ रिजल्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा, और साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। इन केस ऑफ ऑक्सीजन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज हाई है, साइज छोटा होने तो अट्रैक्ट ज़्यादा कर रहा है, तो वहाँ पे साइज क्या होता है, कम होता है। क्लियर है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो हमको ध्यान रखनी है, लेकिन हाँ, साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। okay. Next topic is ionization enthalpy. We know that what is the meaning of ionization enthalpy, so we'll not discuss here. We'll discuss the trends only. Ionization enthalpy decreases down the group. Okay, because main factor of the ionization enthalpy is the size, or as you down the group size increases, so as the size increases, obviously the attraction power, effective nuclear charge decreases, or we can not, effective nuclear charge not decreases, but we can size is main factor is there, so the ionization enthalpy will be decreases from top to bottom. Okay, here see the ionization enthalpy: oxygen 1314, sulfur 1000, selenium 941, 869, 813. तो ऑर्डर सिंपल ऑर्डर इज देयर। तो ऑर्डर वी नो डैट सबसे बड़ा यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन सेलेनियम, then telluranium and the polonium. This order is their highest ionization enthalpy, having a oxygen having a highest ionization enthalpy, and the polonium has a minimum ionization enthalpy. Okay, so first ionization enthalpy decreases. Why decreases? Because due to increasing atomic size and increasing shielding effect. Okay, in next is a okay, तो नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप जो 16 एलिमेंट है, उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कंपेरेटिवली कम होती है इन कंपेरिजन ग्रुप 15. द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप हैव अ लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू कंपेयर टू दोस ऑफ ग्रुप 15. वी डिस्कस अर्लियर इन द ग्रुप 15 element, how many electron, 3 electron present in outermost shell, because configuration is nh2 and p3, and this is a half fill stable electronic configuration. Here configuration in the oxygen family is nh2 and p4, is a hot fill, is a not a symmetrical electronic configuration because 2 electron present in a 1 p orbital. ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन जो ग्रुप 15 एलिमेंट है उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो एक्सेप्शनली हाई है, ड्यू टू वाई, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील p orbital. Clear? So this is the ionization enthalpy. ठीक है. Next is the electron gain enthalpy. So we know that the configuration is of this group is, what is the configuration, NH2 and P4. Okay, this group required how many electron, 2 electron, for what, to complete their octet or achieve the nearest noble gas configuration. Therefore उसका रीजन हम कह सकते हैं, दे हैव अ वेरी हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन एंड हैज़ अ वेरी लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी नेक्स्ट ओनली टू हैलोजन. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन है वो लेकिन लीस्ट नेगेटिव इन दिस ग्रुप, हम कहते हैं कि वहाँ पे वो कम है. अब एक हमारे पास है, हमने कहा कि गेन एंथैल्पी की बात चल रही है, तो हमारे पास पहले हम गेन एंथैल्पी देख ले. तो गेन एंथैल्पी का ऑर्डर देखो हमें दिख रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन 141, -200 sulfur के लिए है, then regularly decreases sulfur to polonium, but exceptionally here is, let's see, oxygen and sulfur. In this case oxygen की जो exceptionally है electron enthalpy is very less. अभी क्वेश्चन उठता है कि क्यों ऐसा हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे देख लो क्यों हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम, इट मीन साइज ऑफ द ऑक्सीजन वेरी स्मॉल, हमने पहले डिस्कस किया, और साइज होने के कारण वहाँ जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई. So due to, or they are then the high density, the electron repelling to each other, so they have a less tendency to attract the electron, again electron, in comparison to sulfur and other element. तो वो कहते हैं due to electron repulsion it has a less negative electron enthalpy than the sulfur. Clear? Okay, so this is the main reason why the electron enthalpy of oxygen is less than the sulfur or other element of. However, from the sulfur onward, the value again become less negative up to polonium. Next is the electronegativity. The element of group 16 have a higher value of electronegativity than the corresponding element of 15.
ठीक है, ये हमको पता है कि उनसे उसकी नेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों होती है? बिकॉज साइज इज़ वेरी स्मॉल, नॉट वेरी, वी कैन से दैट साइज स्मॉल साइज ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक साइज इन कंपेरिजन टू ग्रुप 15। ठीक है, सेकेंड, ग्रुप 15 रिक्वायर्ड 3 इलेक्ट्रॉन फॉर द कंप्लीशन ऑफ इट्स कॉन्फिग्रेशन और HU noble gas configuration, but group 16 element require only 2. So due to these two reasons, group 16 element have a higher value of electronegativity than the group 15 element. Clear? अब अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज को देखें तो ऑक्सीजन 3.450, सल्फर 2.44, देन द डिक्रीजेस रेगुलरली 2.44, 2.48 and then 2.01 and 1.76. Electronegativity decreases with increase in atomic number because atomic size increases slowly but regularly, or as the atomic size increases the tendency to attract the electron attract the electron decreases regularly. Okay, size of the oxygen is very small, compact, so their effective nuclear charge is high, can attract the electron, especially electronegativity and the gain enthalpy are different thing. Enthalpy, the tendency to gain electron. Electronegativity is not tendency to gain, is tendency to attract the electron. तो जो दोनों की रीजन होते हैं वो अलग अलग होते हैं और वहाँ पे अंतर आता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आ जाइए तो हमने यहाँ पे एक लिखा है सिंपल सा, क्यों कम है ऑक्सीजन और सल्फर के बारे में। तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर मच लोअर देन द ऑक्सीजन बिकॉज अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन साइज ऑफ सल्फर फ्रॉम द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 66 है और उसका 104 है। ये इसका रीजन है क्योंकि सल्फर का क्यों आता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा आता है कि क्यों इतना डिफरेंस है हमारे सल्फर ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो वहाँ पे एक सिंपल सा आंसर बताते हैं, बिकॉज साइज ऑफ द सल्फर इज लार्ज। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इन जनरल इन द फिजिकल प्रॉपर्टी विल डिस्कस मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स, melting boiling points, allotropies, tendency to form a multiple bond. Metallic non-metallic property discuss oxygen and sulfur non-metal, selenium and tellurium metallites, polonium is a metal. ठीक है, तो यू हैव टू लर्न। नेक्स्ट हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में आती है मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के अगर हम ऑर्डर को देखें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, हमने क्या देखा है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। तो जिससे ऊपर से नीचे आ रहे हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। देख वैल्यू देख के भी दिख रही है मेल्टिंग पॉइंट कंटिन्यूसली इंक्रीजेस। ठीक है, कहाँ से 55, 393, 490, 725, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हमको दिखता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में देखो 90, 718, 958, 1260, 1235, तो इट इंक्रीजेस रेगुलरली। ठीक है, इंक्रीजेस रेगुलरली, हम वहाँ पे हमको मिल रहा है कि हम ऊपर से नीचे आने पे जैसे जैसे हम बढ़ रहे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। वहाँ देख रहे हैं कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पोलोनियम आर लोअर देन दैट ऑफ द टेलुरिनियम। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो एज ही मूव डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, और जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है वंडर वार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस बिकॉज वी नो डैट इट डिपेंडिंग ऑन द सरफेस एरिया। ठीक है, तो इंक्रीजेस, तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस रेगुलरली। तो एज यू मूव फ्रॉम ऑक्सीजन से टेलुरिनियम द साइज इंक्रीजेस, वंडर वार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, एंड ड्यू टू दिस रीजन वहाँ पे वो अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। ठीक है, तो वो हमेशा हमारे साथ बढ़ रहा है। लेकिन हम आके अगर चढ़े तो अगर हम देखते कि इन पोलोनियम में हम चले गए, ठीक है, तो जैसे ही हम ऑक्सीजन से टेलुरियम से आए हवे, तो हम जब जैसे पोलोनियम में आए तो हमने वहाँ देखा कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलअप हो रहा था तो जो सेलेनियम है, टेलुरिनियम, पोलोनियम, सेलेनियम में 3D भरा, टेलुरिनियम में क्या भरा हमारा 4D भरा, पोलोनियम में 5D भरा, साथ में 4F भी आ गया, और वहाँ पे फिर लग जाता है कौन सा इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जो एस इलेक्ट्रो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पोलोनियम के वो लेस अवेलेबल है फॉर द बॉन्डिंग, लेस अवेलेबल है फॉर द बॉन्डिंग, और ये एक बड़ा कारण होता है कि वहाँ पे थोड़ा सा अंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, तो पोलोनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो घट जाता है। ठीक है, तो उसका जो है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो अभी हमने देखा कि जो मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है वो क्या हो रहा है
देखो यहाँ पे कितना आ गया था मेल्टिंग पॉइंट, 725 से 520 या 1260 से 1235, दोनों घटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। उसका मेन रीजन ये है वहाँ पे कि पुअर चिल्डिंग इफेक्ट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट लग गया, तो जो लेस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए, तो इसके कारण से वहाँ पे वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ भी वीक हो जाता है, और वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन कम होने के कारण वहाँ पे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट घट जा रहा है। क्लियर? उसके बाद एक लास्ट डिफरेंस हमको यहाँ पे दिख रहा था किसके अंदर, मेल्टिंग पॉइंट में, ऑक्सीजन एंड सल्फर के अंदर। तो उसको समझने के लिए सबसे बड़ी अच्छी बात है कि ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है, और सल्फर की एटॉमिसिटी क्या है यहाँ पे, 8 है। और इसको हम एटॉमिसिटी से इजीली समझ सकते हैं, तो एटॉमिसिटी 2 है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, और ये कैसा एसिड है, ये गैसियस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो ऑब्वियसली मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में हमको लार्ज डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, एक एग्जिस्ट कर रहा है गैस में, एक एग्जिस्ट कर रहा है किसमें, सॉलिड के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम चले किस पे, एलोट्रॉपी पे, तो अगर हम एलोट्रॉपी देखें, और तो एलोट्रॉपी के अंदर ना देखें तो वेलोट्रॉपी हमको यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मिलती है, और जितने भी एलिमेंट है, ऑल द एलिमेंट शोइंग द एलोट्रॉपी। ठीक है, ऑक्सीजन में भी हमको मिल रहा है, अगर नॉन मेटेलिक फॉर्म में देखें तो ओजोन और ऑक्सीजन मिल रहा है हमको। ठीक है, सल्फर के तो बहुत सारे जिसको हम आगे जाके पढ़ते हैं। सेलेनियम में हमको 8 डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म मिलते। ठीक है, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट शो द एलोट्रॉपी, तो जितने भी एलिमेंट्स है वो एलोट्रॉपी हमको यहाँ पे दे रहे हैं। क्लियर है? उसके अलावा एक जो हमारे पास और प्रॉपर्टी मिलती है वो मल्टीपल बॉन्डिंग है। कौन सा है? मल्टीपल बॉन्डिंग। तो मल्टीपल बॉन्डिंग की डिस्कस अगर हम करें तो वहाँ पे हमने जो पहले नाइट्रोजन में पढ़ा कि नाइट्रोजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, अदर एलिमेंट कैन नॉट फॉर्म। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो ईजी टेंडेंसी है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की, वो किसके अंदर मिलती है, हमको ऑक्सीजन में मिलती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का साइज क्या है, छोटा है। छोटा होने के कारण आसानी से पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग बना लेता है। लेकिन बाकियों में ये टेंडेंसी हमें बहुत कम देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है, तो पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग के चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बना रहा है और गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, हाँ, मानते हैं कि सल्फर है अनदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप हैविंग अ डी ऑर्बिटल एंड हेंस कैन फॉर्म पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि वहाँ डी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहा है। लेकिन जनरली हमको वहाँ पे इसीलिए सिंगल बॉन्ड मिलते हैं सल्फर में और बाकियों में, क्योंकि उनमें मल्टीपल आपस में पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग की चांसेस कम होते हैं। दैट्स वाई एग्जिस्ट इन एट एसिड फॉर्म, SE8 फॉर्म, TE8 फॉर्म। ठीक है, बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड ड्यू टू देयर लार्ज साइज। ठीक है, सो दे कैन नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, एंड द ऑक्सीजन कैन फॉर्म अ पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक molecule at the room temperature. Okay.